सिडनी स्वीनी के ही इतने कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं भाई, उसका जीन्स का एड. I think she is a bit overrated, maybe overhyped. मतलब एक्टिंग वाइज तो आई हैवंट सीन ऐसा इतना उसके कोई इतने मूवीज. डिसेंट, नॉट अ ग्रेट एक्टर की हाँ हम लोग फक के एक्टिंग करके, बट हाँ लाइक शी इज fucking gorgeous bro, like the prettiest woman on this earth is after Nandini Balu. I think people in Hollywood are prettier than her. I think she's just being sexualized, to be very honest, and she's agreeing to it, and there's no harm in it. Yeah. But I don't get the hype. What are those topics that make you feel ki with respect to this subject or this topic I am okay to, like, you know, for living under the rock? Politics is number one. Politics is a big no-no for me. Like I don't give two fucks कि ठीक है जो भी हो रहा है होने दो. ऐसा नहीं अगर कुछ एक्सट्रीमली खराब होगा ऑफ कोर्स अगर मेरा ओपिनियन मैं शेयर करूंगा, बट आई वुडेंट फाइट विद समवन ऑन पॉलिटिक्स कि ब्रो तू गलत है मैं गलत हूँ, ये सही हो रहा है ये गलत. Fighting on politics is the worst thing to do. So yeah, I think politics has to be a big no-no for me. Hello, welcome back to another episode of Importsters, and today we are going to talk about, I don't know. So let's begin. आजकल I think फिर से अभी थोड़ी बहुत अच्छी मूवीज आ रही है. हाँ. I saw that Now You See Me का पोस्टर आ गया. हाँ. Third part आया है. मतलब I think that's one of the movies in today's time which just like got me excited because it's magic ना. Yeah. और दोनों पे स्टार्ट के बाद अच्छे थे, मतलब रॉबरी प्लस मैजिक ब्रो, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट वाज ओनली समथिंग वेरी डिफरेंट. बट ऐसा सिडनी स्वीनी का भी एक नया मूवी आया है, कोई बॉक्सिंग रिलेटेड मूवी है, एक बहुत नीश मूवी है, एक नीश बॉक्सर को पकड़ा है एंड शी इज प्लेइंग हर कैरेक्टर. लोग बोल रहे हैं कि उसने कैरेक्टर अच्छा प्ले किया बट मूवी हैज टैंक्ड कंप्लीटली, क्योंकि अगेन बहुत नीश जॉनर है. ये एक रैंडम बॉक्सर है, मतलब ऑफ कोर्स शी माइट हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये उसका एक्टिंग करी तो लोग को इतनी पता नहीं हो बॉक्सर कौन है. But like, was it released in India? I'm not sure actually. I'm not sure. But उसके इतने कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, उसके बाद भी टैंक किया है मूवी. On that movie? मूवी पे नहीं, बट सिडनी स्वीनी के ही इतने कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं भाई, उसका जीन्स का एड और बाकी जो भी चल रहा है उसका, उसके बाद भी मूवी didn't work as well as she expected. Like, but you're a big fan, huh? I'm a big fan. I think she is a bit overrated. I don't know. Maybe overhyped. Yeah, but you may have your reasons why you like her. Fair. I have two big reasons why I like her. हाँ, मतलब एक्टिंग वाइज तो आई हैवंट सीन ऐसा इतना उसके कोई इतने मूवीज. मैंने बस उसका वो यूफोरिया देखा है, उसका रिसेंटली जो मूवी आता है रोम कॉम, मैं नाम ही भूल गया वो मूवी का, वो देखा है. डिसेंट, नॉट अ ग्रेट एक्टर की हाँ हम लोग फक के एक्टिंग करके, बट हाँ लाइक शी इज fucking gorgeous bro, like the prettiest woman on this earth is after Nandini Balu. नहीं, but मेरे को ऐसा लगता है कि I think people in Hollywood are prettier than her. I think she's just being sexualized, to be very honest, and she's agreeing to it, and there's no harm in it. But I don't get the hype. मेरे को उतना ज़्यादा नहीं समझता है, because एक तो नंबर वन की इट इज़ जस्ट आउट देयर कि तुमको उसको कैसे ड्रेस करवाना है, तुमको अपना क्या चीज़ सेल करवाना है, एंड उसके बस बेसिस पे चल रहा है. मे बी आई एम दैट गाय हु लाइक्स इट व्हेन इट इज़ अ बिट सटल. इट इज़ लाइक राइट इन योर फेस, एंड आई नो एज एन ऑडियंस कि तेरे को यही दिखवाना है मेरे को, एंड एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट बोर्ड. Probably when you saw that for the first or the second time, then it was a bit exciting. But then after a certain point it was just like ठीक है, अब मतलब कि इसमें नया क्या है, क्या हो रहा है, क्या है. That is there कि मतलब she has made very obvious why she's famous and she's proud of it. Like others are not that कि हाँ bro ये justification नहीं दे रहे, but she's like हाँ I know what I'm doing. I have been given a great body by God and I'm flaunting it, I'm using it. Correct. मेरे benefit में, and why not? Correct. Bro? Yeah. And we are not blaming her. It's just that after a certain point I don't get the appeal that much. It's like अब बोर हो गया यार, अभी कुछ नया कर. अभी तो ऐसा अपना टोपी निकाल, उसमें से कुछ निकलेगा खरगोश, तो मैं भाई सिडनी स्वीनी ने क्या कर दिया, क्रेजी हो गया. बट मेरे को ये बात नहीं समझती कि I don't get the kind of endorsements that she is doing, because I think by brand value probably she, like, you know, she might be the top actress in Hollywood right now, in terms of fan following also. Like she was doing that, you know, Baskin Robbins के साथ collab, bath water soap, some nonsense. वो भाई वो तो क्या था मेरे को समझा नहीं. अमेरिकन नहीं तो भेज दो. मतलब अगर मिलेगा तो नहीं, क्यों नहीं लेंगे. But हाँ मेरे को ऐसा लगता था कि she might be a great fit for like Dior or like doing some Mercedes ads, like मतलब in terms of a premium segment
or a luxury segment kind of a product. आई गेट इट, मतलब हाँ उसके लिए वो लग्जरी एस्पेक्ट चलता रहेगा, बट उसके मासेस में इतना अपील है ना, तो लग्जरी ब्रांड इतना पिक भी नहीं करते क्योंकि पता है कि भाई इस पे सभी करते हैं, सिडनी स्वीनी को सभी जानते हैं, और उसने अभी एक जो जीन्स का ऐड किया जिसके वजह से इतनी फंसी. सो आई थिंक आई जेन्युइनली थिंक शी इज डम, लाइक मतलब वो तो ऑब्वियसली उसके इंटरव्यू पे भी अभी उसने ओपिनियन पूछा था किसी का, एंड शी इज लाइक कि आई विल से व्हेन आई हैव समथिंग टू से, एंड शी गॉट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दैट बिकॉज जो भी इंटरव्यू कर रहा था उसका, शी गेव हर अ प्लेटफॉर्म टू जस्टिफाई और जस्ट टू शेयर हर पॉइंट, एंड शी वाज लाइक मेरे पास जब बोलने के लोग मैं बोलूंगी. That was a very, very, very bad thing to say, and she got a lot of hate for that. Bad PR move. Bad PR stuff. Very bad PR move. Right? No, but but like, was that question related to something political or no? It was just उसके मतलब इस पे ही related था कि मतलब तुम्हें इतना सब तुम्हारे बारे में चल रहा है, वो गेस्ट का मतलब जो भी तुमने जीन्स का ऐड भी किया. What is your opinion on that? कि like तुम क्या सोचते हो? It was about her only. She literally gave her a platform कि bro, this is your chance to speak to the audience. And she was like मेरे पास जब कुछ होगा सब बोलूँगी. क्या है भाई? She like भाई मेरे बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया. Exactly. मेरे को नहीं फर्क पड़ता. तुम लोग निकलो, तुमको जो सोचना है सोचो. Yeah. But I think people were happy with that American Eagle वाला ad. Because people were like कि तुमने एक point के बाद तुमने like you know to just fit in people, like you know you got fat people, black people, सबको mixture बना के सब gay वे लोग को तुमने डाल दिया, and now after so much time they see like a hot woman there in an ad which is you know perfectly suited for the product. That ad I mean ठीक है, अभी लोग offend हो गए, मतलब I don't. But what was the point to get offend? मतलब ऐसे उसको बोला था ना कि I have perfect genes to do this, उससे related कुछ तो लोगों ने pick कर लिया था, और वो offensive मेरे को भी इतना deep में नहीं पता है, but something people got triggered उसके कोई स्थान से, and she was like bro like उसका, और it was clear कि उसका intention भी नहीं था, ठीक है, it was a word play, but उसका ऐसा intention भी नहीं था. तो लोग अभी चढ़ गए तो ठीक है भाई उसको, and she doesn't have to be apologetic about it if she doesn't feel it's wrong, but bro when you are given an opportunity to speak भाई come to import to the opportunity to speak. But I think कि like all this hatred now, it comes from all that unnecessary information that like you know you've been fed on the internet. मतलब अभी उसने like example कुछ jeans के बारे में बोल दिया रहेगा, तो you know someone who's an African American like उसके अंदर आ गया रहेगा, अच्छा तो क्या मेरे पास अच्छी जीन्स नहीं है, like मतलब I'm assuming, मेरे को ये स्टोरी भी नहीं मालूम है, but like do you think कि after a certain point the human mind is not wired and is not required to have as much information and knowledge as people want us to have? मतलब कि because I feel this sometimes. I like wake up in the morning, I rush to the office. तुम ट्रेन में तुम बैठ के कभी तुम थोड़ा स्टॉक मार्केट मतलब कि तुम उसके बारे में देख रहे हो, स्टॉक मार्केट के बारे में देख रहे हो, then you're reading the news, so many industries, then you're doing a side hustle, you're working for 10-12 hours a day in your office, you're traveling for 2.5 to 3 hours, and you want to read the books and the newspapers, and there's so much to learn and grasp, and with this evolving technology, मतलब कब करेगा आदमी इतना सारा. हाँ, and I genuinely don't think it's necessary also. Like मतलब हाँ ठीक है, लोग बोलते हैं कि you have to be updated with everything that's going on in the world, but you just need to be updated with what affects you and what you're doing right now. Relevance. तो हाँ मेरे को तो पॉलिटिक्स के बारे में पूछेगा, मैं कुछ नहीं पता है भाई, और मेरे को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, बट अगर मैं पॉडकास्ट के बारे में कैसे चलाते हैं ये करते हैं वो पूछेगा, ठीक है मैं थोड़ा बहुत नॉलेज लूँगा, मैं सीखते रहूँगा वो उस पर जो भी आएगा कंटेंट क्रिएशन के बारे में, क्योंकि ये मेरे को करना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है बैठ के भाई ये कंट्री का कैपिटल कितने हैं, 50 कंट्री का कैपिटल कौन से है. ठीक है जनरल नॉलेज रखना अच्छी बात है और वो रखना भी चाहिए, कुछ चीज़ें मेरे को पता होगी, कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पता होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्रो आई एम डम, और इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट अप टू डेट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम अप टू डेट विद वॉट एवर इज अफेक्टिंग मी एंड वॉट एवर आई एम डूइंग, एंड दैट इज वॉट आई थिंक शुड बी द न्यू नॉर्म. करेक्ट. Like I think it should be appreciated, not appreciated, but it should be acceptable to live under a rock sometimes. 100%. मतलब like especially with respect to those topics and subjects where you're not required to have an information on or to form an opinion on. For example, if it is not like you know if it won't let you like monetize in any way, if it is not concerned with your safety or your health or your educational aspects, so नहीं जाना तो क्या मतलब like what is there to lose? मतलब I do agree कि you know and all the people who are
those infomaniacs, they will come and be like, no, but you should like know about this. Like ऐसे हमारा देश चलता है. And I'm like, ठीक है, cool. But and I'm not taking an excuse कि like क्या कहते हैं, मेरे पता होने से या ना होने से देश नहीं चलेगा. But like my simple opinion about politics is that okay, I know certain things, but I refuse to go into the depth of it. 100%. Because I know for a fact कि boss, like no one's saying the truth. Yeah. It is just a narrative being set. Yeah. As is on any social media platform. Like from politicians to celebrities, actors, cricketers, to social media stars. Like everyone is just trying to sell their own story. Yeah. And like everyone knows that half of it or even like more than half of it is fake. Yeah. ठीक है, बहुत कम चीज़ें होती है जो लाइफ फिर ऑथेंटिक होती है. अब एक पॉलिटिशियन आके मेरे को बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा क्या मैंने किया, पर मतलब मेरे पास कौन सा प्रूफ है? मैंने थोड़ी ना देखा आपको करते हुए ये सब. और तू मेरे को थोड़ी ना बता के कर रहा हो, तू मेरे अप्रूवल के साथ थोड़ी ना कर रहे थे. को भी जो तो तेरे हिसाब से सही है, जो तेरे PR के हिसाब से सही है, तो वो कर रहा है. और इफ पीपल अग्री विद यू, ग्रेट. इफ दे डोंट अग्री विद यू, आई डोंट थिंक यू गिव अ फक अबाउट देम एनीवे. सो ऐसा नहीं है कि मेरे को हर एक पॉलिटिशियन का नाम होना चाहिए कि मैं कंट्री में रहता हूँ, या तो मेरे को हर एक चीज़ के बारे में पता होना है. ठीक है भाई, अगर इफ आई एम गेटिंग हायर टू डू समथिंग, को उसके बारे में नहीं पता, देन आई एम डम, क्योंकि मैं आई एम नॉट पुटिंग इन द एफर्ट्स टू लर्न अबाउट दैट थिंग. बट अगर मेरे को जो चीज़ अफेक्ट ही नहीं करती है, मैं क्यों फालतू में डालूँ? तो ऊपर से अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, इतनी सारी चीज़ें करनी है और तू बैठ के ये सब कर रहा है कि हाँ ब्रो, ये इसका तो ये है, अच्छा चला, आई लर्नड अ न्यू फैक्ट टुडे, एंड यू आर जस्ट डूइंग दैट ऑन द इंटरनेट व्हेन यू हैव अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन योर लाइफ व्हिच आर एक्चुअली अफेक्टिंग यू एंड योर फैमिली. यू आर स्किपिंग दोज थिंग्स एंड यू आर डूइंग ऑल दिस, देन यू आर वेस्टिंग टाइम. ट्विटर पे लोग आजकल इतने एक्टर्स का झगड़ा कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस का झगड़ा कर रहे हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कि खुद की जिंदगी में इतना सब कुछ पड़ा, वो सब छोड़ के ये सब कर रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा ट्विटर पे वेस्ट कर रहे हैं. देन ब्रो, व्हाट सेंस डज इट मेक? वही ना, वो लाइक उनके लिए डाउन टाइम है. दे आर लाइक कि चलो भाई, ये जो मेरा इतना स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, I know that I need to take some actionables and I can do certain things. Yeah. But this is what will distract me. Exactly. And kind of like bring that thrill into my life. Yeah. But like what are those topics that make you feel कि चलो like with respect to this subject or this topic, I am okay to like for living under the rock. Politics is number one. Like I don't almost care, same. Yeah. I don't care कौन CM हो, कौन, मतलब ठीक है, मेरे को पता रहेगा कि मेरे को एटलीस्ट पता रहेगा कि PM क्या चल रहा है. थोड़े बहुत जैसे आज कल ये इलेक्शन हुआ था, मेरे को एटलीस्ट पता है कि क्या चल रहा है. बट मेरे को ये नहीं जानना चाहिए ये स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है. तो पॉलिटिक्स इज अ बिग नो नो फॉर मी. लाइक आई डोंट गिव 2 fucks कि ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो. ऐसा नहीं अगर कुछ एक्सट्रीमली खराब होगा, ऑफकोर्स अगर मेरा ओपिनियन मैं शेयर करूंगा, बट आई वुडेंट फाइट विद समवन ऑन पॉलिटिक्स कि तू गलत है, मैं गलत हूँ, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है. फाइटिंग ऑन पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट थिंग टू डू. सो या आई थिंक पॉलिटिक्स हैज टू बी अ बिग नो नो फॉर मी. जस्ट दैट आई थिंक मेजरली यस, और काफ़ी चीज़ें होंगी, बट टॉप ऑफ द माइंड तो मैंने पॉलिटिक्स आ रहा है. Like you were kind of living under a rock, but in the past couple of months or weeks or years, you have developed some interest. कि शायद से मेरे को जानना है इसके बारे में. मैं बहुत टाइम से लाइक फिर अनअवेयर था और जानबूझ के था, बिकॉज मैं कि ठीक है नहीं फ़र्क पड़ता, बट अभी लगता है कि नहीं, थोड़ा जान लेता हूँ. हाँ, आई थिंक ये तो मैं पहले डिस्कस किया है कि 3-4 साल पहले मेरे को स्पिरिचुअलिटी वाला कुछ नहीं पता था, बट मैं डीप घुसने लगा हूँ कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं दिमाग को, कैसे ये करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें. तो इस पर मैं ज़्यादा घुस गया हूँ इन टर्म्स ऑफ कि रीडिंग बुक्स एंड वो सीइंग हाउ पीपल एक्चुअली डू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. कि लोग सब, क्योंकि तू देखेगा हर एक सक्सेसफुल बंदा बोलता है कि ब्रो मेरे दिमाग में पहले वो था और अभी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया. हर एक सक्सेसफुल बंदा बोलता है. तो वो मेरे को बहुत इंट्रीगिंग लगता है कि ब्रो ये लोग सब कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही. तो इसमें से अगर मैं थोड़ा बहुत भी सीख रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है, इट विल हेल्प मी ओनली. करेक्ट. या तेरे दिमाग में for me it was that I've developed an interest on recently in the past week, I would say, that I was very clueless about and I didn't give 2 fucks, was geopolitics. It is something that like I was very not averse to knowing that, but I didn't find it worth enough to invest time, because like time is very limited, even I have very limited time. But I don't know यार, बस just somehow I felt कि ठीक है कि like example US ने ये किया तो ये इससे effect मतलब like फिर ऐसे ये हुआ effect, फिर इंडिया पे ये effect आया, फिर stock market में ये हुआ. तो मतलब it is like a chain of things, it is like a domino effect कि how example US और Russia और फिर let's say like in terms of Japan, in terms of manufacturing,
मतलब वो लोग लाइक सब कैसा करते हैं एंड वो हमको कैसे फर्क पड़ता है. एंड एग्जाम्पल नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम अ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, लाइक मैं भी थोड़ा बहुत मैंने फिर से पढ़ना चालू किया, लाइक यू नो फॉर अबाउट द वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, कि वो मतलब मेरे को पता है कि अच्छा मेरे को बस लाइक एग्जाम्पल इफ आई टॉक टू अबाउट वर्ल्ड वॉर 1 पहले, तो आई जस्ट नो कि देयर वर लाइक यू नो 2 काइंड ऑफ ग्रुप्स, लाइक द क्या बोलते हैं उसको, allies की allies, हाँ करेक्ट, एंड दो सेंट्रल पावर. तो ये बस पता है कि कौन जीता पता है, ये मेरे को बस थोड़ा बहुत जो स्कूल में पढ़ा था उसे लेकर अब तक है. बट इन डेप्थ कि अच्छा ऐसे हुआ था, बल्कि बिकॉज इट सीम्स लाइक अ वेरी लाइक यू नो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो अबाउट. करेक्ट. तो बस ऐसा लगा कि चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड यू नो पीपल इन माय ऑफिस टॉकिंग अबाउट इट. They obviously talk about the current scenario, but I think a lot of it comes from there, right? You know, that is your baseline. फिर तुमको समझेगा कि you know slowly and steadily like सब डेवलपमेंट्स कैसे हुए. लाइक एग्जाम्पल जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद जो कोल्ड वॉर था उसके बाद स्टार्ट हुआ बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. एंड फिर तभी तेरा कॉन्सेप्ट आई थिंक मे बी इट लाइक केम इन टू प्लेस यू नो बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म. वो चला. फिर जब काइंड ऑफ वो खत्म हुआ, जब फिर यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, देन तेरा फिर 1991 का जब इंडिया में पूरा वेव आया यू नो फिर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, व्हाटएवर. तो इट है मतलब कि वो सब कैसे कनेक्टेड है. तो वो मेरे को लगा कि ये लाइक काफ़ी लाइक यू नो इंटरेस्टिंग हो सकता है. बट हाँ, स्पीकिंग अबाउट लाइक यू नो शिट दे टीच इन स्कूल, जो मैं ऐसे बोला था, मेरे को तभी लगता था कि कितना बहुत लेवल्स तक ये वेस्ट है. बिकॉज और वो एक पॉइंट पे था भी, बिकॉज उनका लाइक पढ़ाने का तरीका वाज नॉट गुड इज व्हाट आई फील. या वो लोग के टाइम पे तो मतलब ऐसे था कि रट्टा मारना है कि भाई हिस्ट्री मार्क्स चाहिए. स्पेशली हिस्ट्री में ब्रो कितने वर्ल्ड वॉर हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, कितने सब्जेक्ट्स थे जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग थे, बट वो लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सिखाया नहीं. या तो हमें बोलते ना एंड गोल हमारा ऐसा था कि बस मार्क्स लाने हैं, ये नहीं था कि तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम्हारे आगे लाइफ में कैसे हेल्प करेगा. जैसे ब्रो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सिखाया नहीं है, और आजकल तो लिटरली एवरीवन शुड इन्वेस्ट और एटलीस्ट लर्न टू इन्वेस्ट. कुछ नहीं सिखाया. एंड हिस्ट्री में भी देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच अफेक्ट द स्टॉक मार्केट. जैसे तूने बोला कोल्ड वॉर इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे अफेक्ट द स्टॉक मार्केट. तो वो कभी वो क्या बोलते हैं इंसेंटिव ही नहीं मिला है कि ब्रो ये सीखूंगा तो मेरे एक्चुअली लाइफ में हेल्प करेगा. वही था कि भाई तेरे को रट्टा मारना है, ये है. गाने में सिखाते थे कि ये औरंगजेब ने ये किया किया, वो गाने में सिखाया. ज्योग्राफी में भी ब्रो कैपिटल्स ऑफ द सो मेनी कंट्रीज, ब्रो यू नीड टू जस्ट रट्टोफाई एवरीथिंग, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है. इसलिए देखो, और एग्जाम हो गया नेक्स्ट ईयर तो वो पढ़ेगा भी नहीं. हाँ चलिए हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट डिफिकल्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वैसा है. तो मेरे को ये एजुकेशन सिस्टम भी बहुत शॉर्ट लगता है. हाँ अगर मतलब कि लाइक जो तुम्हारे बुक्स थे, एक तो वो जो पूरे बुक का स्ट्रक्चर था, जो वे में चीज़ें लिखी थी, इतना थियोरेटिकल, जबकि लाइक इफ आई थिंक ऑफ समथिंग लाइक अ वर्ल्ड वॉर और समथिंग राइट, उसको तुम लोग एक कितने अच्छे वे में उसको पूरा स्ट्रक्चर करके पढ़ा सकते हो. करेक्ट. बिकॉज एक्चुअली any major event in history is a very interesting thing to learn about. Like if you are aware of the entire world war from start to end, और तू मेरे को like बैठ के like पूरा हाफ एन आवर समझाएगा, तो मेरे को सुनने में काफी मजा आएगा. बट वही जब मैं स्कूल में था और मैं जब पढ़ रहा था, तो तभी तो लगता था कि ये क्या, क्योंकि इट वाज जस्ट दैट कि ये आंसर यहाँ से, अभी देखो पता है वो लोग ऐसा वो कहते बुक्स में ऐसा सब बना देते ब्रैकेट डाल कि इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. मैं बोला बस रट लो, बस हाँ रट लो खाली कि एग्जाम में ये आएगा तो तुमको ये पॉइंटर्स याद करने हैं, बीच का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पॉइंटर्स में मार्क्स मिलेंगे. हाँ तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट गया भाड़ में. करेक्ट. फक हाउ इट स्टार्टेड, हु स्टार्टेड इट, व्हाट वाज द रीजन, ऑल दैट डजंट मैटर. इसके और इसके जो झगड़ा हुआ था, कितने ईयर में हुआ था, डेट याद करो, ये एग्जाम में लिख के आना, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. ग्रेट ब्रो, यू हैव पास्ड द एग्जाम 92% इन 10th, फकिंग किलिंग इट इन द वर्ल्ड. या मतलब वही आई थिंक ये सब आईसीएसई, सीबीएसई, एसएससी में ना मोर और लेस यही होता है. दैट्स व्हाई at least in the past couple of years I've started appreciating IB, IGCSE boards more, because I think ki, like obviously even they have theory subjects, even they need to write down answers to like you know get marks, but they focus more on projects and like you know group stuff where like they collaborate with each other, and then they have to present it in front of the class or their teacher. So that's a great way of learning, because you tend to do more research, you tend to know the actual facts and the entire storyline, and then you know the pros and the cons and the analysis. So I think that kind of development of your mind is
This is what like masters also does. Like Nandini is also studying marketing. तो marketing में the whole point is to network with people, see how agencies, companies work. तो उसका भी एक सब्जेक्ट था कि लास्ट सेमेस्टर वो लोग का ऐसा था कि यू एक्चुअली हैव टू इंटर्न, एक जगह पे जाके इंटर्न करना रहता है, तुम्हें वो सब जो भी सिखा रहे और इंटर्नशिप के एंड में यू नीड टू प्रेजेंट कि तुम्हें क्या सीखा है, कौन सी कंपनी का, एक कंपनी देते हैं कि ये कंपनी को तुम्हें इसके सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तुम एक्चुअली जाके इंटर्नशिप कर रहे हो, ये सब कंपनी के बारे में सीख रहे हो क्या प्रॉब्लम्स है, और तुम वो सेमेस्टर के एंड में प्रेजेंट करो कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट. दैट इज व्हाट यू कॉल लर्निंग ब्रो. लाइक दैट इज द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल एक्चुअली टेंड टू गो फॉर देयर मास्टर्स, अंडरग्रेड में भी, पोस्ट ग्रेड में भी, कि वो लोग एक्चुअली सिखाते हैं, रट्टा नहीं मराते, और वो लोग सिखाने का तरीका इज ऑल्सो वेरी practical rather than just ki ho bro just rectify and come to give your exam tomorrow. हाँ मतलब कि because like you know when you are held accountable in front of the entire group or the entire class, you know where you have to actually say stuff. So number one, then you need to be very sure of what you have done. And to take it a step backward, you need to actually do some work. And you know do some research कि अच्छा मेरे को ये करना है, मैंने ये किया. And it's a completely different task to then present it to someone in a structured way. So even that's a skill that you need to learn in corporate. In normal businesses, I don't know, you know, whether that is relevant or not, but if you have to be in corporate, then you need to learn about कि अच्छा मैंने इसको जो मैंने काम किया है इसको मैंने ऐसे लाइक यू नो फिर उतारा है कैनवा पे या फिर पीपीटी पे, और अब मेरे को इसके बारे में ऐसे ऐसे बोलना है कि इन शॉर्ट सिंपल स्वीट मैं उसको पूरा समझा दूँ कि लाइक यू नो फिर दिस इज द प्रोसेस दैट आई फॉलोड, इससे मेरे को ये सब कंक्लूजन है, ये सब एनालिसिस है, एंड माई टेक ऑन दिस टू मूव फॉरवर्ड इज दिस. तो वो एक बहुत बड़ा स्किल है. अभी जैसे कि मैंने ये थोड़ा बहुत बोला तो ये भी मेरे को अभी पता चला लाइक यू नो इन माय करंट जॉब. बट यू नो व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन यू काइंड ऑफ यू नो डेवलप दैट हैबिट एंड इट बिकम्स समवॉट ऑफ अ सेकंड नेचर. करेक्ट. तो मतलब मैं लाइक वो सब सोचता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि इसके लिए इनका लाइक यू नो ग्रूमिंग एंड देयर थिंकिंग कैपेबिलिटीज and like they are you know for critical thinking, problem solving skills are so enhanced. तो हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है. एंड लाइक यू नो फॉर टेकिंग टू दैट पॉइंट, आई फील कि अ साइड प्रोजेक्ट और अ साइड हसल can teach you about like you know real life stuff way better than schools or colleges. Oh, 100% bro, 100%. I don't think any textbook or any college can actually teach you what your actual work can teach you. मतलब bro हम घुसे इसमें, हमें अभी तक काफ़ी चीज़ें पता नहीं है, बट घुसने के बाद I don't think कोई भी स्कूल में या तो कोई भी कॉलेज में हमें सिखाया जाता कि ब्रो माइक में वायर कैसे लगाते, कोई भी नहीं सिखाएगा. वो तुम्हें एक्चुअली बैठ के सीखना पड़ेगा. और तुम ऐसे मेरे को भी नहीं पता, इसको पता है. मतलब इन जनरल ऑल्सो लाइक वी फिगर शिट आउट राइट. और अगर हम ये चालू नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉलेज कोई पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है वो लोग बताते हैं कि ये है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट यू लर्न थिंग्स, यू फिगर आउट प्रॉब्लम्स कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करूँ. और तो मैं तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि ब्रो इफ यू वांट टू लर्न, नो यू ऑलवेज लर्न वाइल डूइंग अ जॉब. करेक्ट. या अगर तुमको साइड हसल करना है, पीपल कितने लोग तो ये सोचते हैं कि भाई मुझे करना है बट मुझे पता नहीं कैसे करना है. एंड द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज टेल देम ब्रो, स्टार्ट. प्रॉब्लम्स देखो अपने आप आएंगे, तो अपने आप सोल्यूशन ढूंढ भी लेगा. करेक्ट. तू जब तक चालू ही नहीं करेगा तेरे दिमाग में प्रॉब्लम्स ही लेंगे कि ब्रो हाँ ये प्रॉब्लम है, छोड़ यार बाद में करेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब मैं करूँगा. देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर थिंग. यू जस्ट स्टार्ट, प्रॉब्लम्स आएंगे, यू विल फाइंड अ वे टू फिगर देम आउट. करेक्ट. मतलब कि मेरे को फिर वही लगता है कि like an educational curriculum, especially where it is more towards that rote learning and that marking system, it will teach you certain technicalities on book obviously. It will teach you कि अच्छा ये तुम्हारे key metrics होते हैं, ये फिर ऐसा है, but like you know when you actually get on the ground, you will understand that things, that concepts just keep evolving. Like example in the social media industry, every year it is evolving so much that the KPI that mattered a year ago is not mattering right now anymore. Like you only told me कि likes matter नहीं करते आजकल. It is more about shares and saves and comments. Right? तो 2 साल पहले maybe likes matter करते होंगे, but अभी नहीं करते. But जो example एक स्कूल में गया, ठीक है, सोशल मीडिया स्कूल, उसको तो 3 साल पहले पढ़ाया था कि भाई likes is the top most thing that you should aim for. But it like you know things evolved. Exactly. But वो लोग का वो evolve नहीं हो रहा है. वो लोग का तो टेक्स्ट बुक वही रहेगा कि 4 साल पहले 5 साल पहले जो पब्लिश हुआ है मैं वही सिखाऊंगा, जबकि वो रेलेवेंट भी नहीं होगा आज के ज़माने में. तो I just don't get
द फैक्ट कि हाँ ब्रो कि हाँ कॉलेज विल ऑलवेज टीच यू मोर देन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. तो जिसलिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, माइट एज वेल स्टार्ट द बिजनेस रादर देन गोइंग फॉर एन MBA कॉलेज. ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो सब बेटर होगा, बट तुम्हें डायरेक्टली अगर बिजनेस चालू करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, दिस all this is not going to be taught at that school or a college. Correct. I absolutely agree. मतलब कि मेरे को लगता है कि if your end goal you know right now that is to do business, yeah, and you have some resources, you have some backing, and especially in a case where you know you are going to take ahead your dad's business. So I don't see a lot of sense in going for an MBA. Yeah. In a case where you know कि अच्छा I have to do corporate for X number of years and I need that push in my life and right, तो मेरे को तभी फिर भी सेंस लगता है. तुम्हारा like end goal it may be to do business, but you know for a fact कि अगले जो भी 10 साल तक मैं corporate में ही रहूँगा, या अगर कोई opportunity stumble upon हो गया, if I stumble upon some opportunity, then it is like a different thing. Yeah. But you know कि you want to do business right now, it is your dad's business, or in a case where you have some resources and you see some opportunity, then why waste time, spend money to go. ठीक है, you will learn something. अभी तुम गए हो, पैसा खर्च किया है, कुछ ना कुछ तो सीखोगे, but is it worth the trade-off? Is it worth that 2-year trade-off where you actually get on the ground, you do something, you fail, you again start, you lose some money, then you get into stress, then to get over that stress and to make some money back, to deal with people. मतलब कि मेरे को लगता है कि when you go on the ground now, what like books don't teach you, and what is actually for important from an entrepreneur point of view, ठीक है, your technical skills are required, but your communication skills, negotiation skills, your man management, right, when there are so many people for under you, and you need to get work done from them, like how do you manage them? An example, if people under you are illiterate or are very well educated, then how do you manage those egos? Yeah, exactly. That's the best example to give actually. मतलब तुम्हें सिखा देंगे कि ये P&L कैसे टैली करते हैं, चल इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए, बट नोबडी इज गोइंग टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स. कि ऑफिस में भाई मेरे को ये कल्चर कैसा सेट करना है, लोग 11 बजे आ रहे, 12 बजे आ रहे, मैं कैसे लोगों को बोलूँ कि तुम 10 बजे आओ, काम करो, कभी भी जाओ, तुम ये सब कैसे सेट करोगे? तुम्हारा in the end it all comes down to your personality as well, कि if you're okay with having a chill culture or a toxic culture, whatever you're comfortable with. बट ये सब तुम्हें कोई जाके सिखाएगा नहीं कि ब्रो आज मेरा एम्प्लॉय हर हफ्ते छुट्टी ले रहा है और मेरा इतना काम है रुका हुआ है. ये तुम्हें MBA कॉलेज नहीं सिखाएगी उसका डील कैसे करते हैं. इन दी एंड तुम्हारे पर्सनालिटी कैसा है, तुम उससे डील करोगे, और वो जब तुम एक्चुअली वो सिचुएशन में होगे तभी तुम सीखोगे. तुम एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, थर्ड टाइम यू विल ऑटोमेटिकली फिगर समथिंग आउट. and like in terms of where I'm just reading this book called The Shoe Dog. ठीक है, it's from the founder of Nike, Phil Knight. Like उसमें I'm like halfway through the book and it made me realize कि जो उसका supplier था from Japan, and he knew कि अभी ये मेरे को business नहीं देगा, तो मेरे को मेरे शूज़ का कुछ करना पड़ेगा, मैं भी कहाँ से import करूँगा and all. तो now to have his business, he used to call him to New York, मतलब कि sorry to US, वो जहाँ पर भी रहता, Portland I guess, and sometimes he used to travel to Japan. So that relationship building skills as a founder, as a businessman are so important. Like you should know कि भाई अगर मेरा ship डूब रहा है तो मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे खुश करूँ, मैं कैसे चाटू भी थोड़ी बहुत, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं मेरा एंगर कैसे कंट्रोल करूँ. बिकॉज उसमें ना कितनी बार वो उससे मतलब लाइक 1-2 सेगमेंट्स में वो उससे कैसे बात कर रहा था भैंसो बदतमीजी से, एंड ही न्यू कि भाई मैंने मेरा मुंह खोला या मैंने इसको कुछ उल्टा सीधा बोला, ये मेरा एक ही सप्लायर है एंड आई एम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा बिजनेस डूब जाएगा. ही वॉज डूइंग इन 1972 और 1973 ही वॉज डूइंग $1.3 million in annual sales. $1.3 million in annual sales, एंड वो उसका सोल सप्लायर था शूज का. नाउ तू खुद के गुस्से को कैसे कंट्रोल करेगा इन दो सिचुएशंस? योर ईगो असाइड, यू कीप योर एंगर असाइड. वही नहीं तो लाइक ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. अभी मतलब तू देख ले, अभी तेरा कोई एम्प्लॉई है एंड यू अब वो काम ही नहीं कर रहा, तूने बहुत बार समझाया. नाउ हाउ डू यू सिट एंड हैव अ टफ कन्वर्सेशन कि बॉस वी आर गोइंग टू फायर यू? वो तेरे को नहीं सिखाएंगे ना, वो तेरे को खुद से सब कॉल लेना है. एंड वेर यू हैव दैट गिल्ट कि ये इसका
जो भी ये क्या बोलते हैं अपना 3-4 लोग का परिवार है वो सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. Everyone is going to suffer because of one decision, but you know if you do not take this decision, you are going to your suffer. business will suffer. Business will suffer. Other people around you will also suffer. The other employees will also suffer. So you have to take that call. जैसे like I mentioned, like मेरे company में भी so many people got fired recently. In the minimalist की recent company, so many people got fired recently because like my co-founders they sold their shares और किसी और ने acquire कर लिया है. So they had to take a few tough decisions because उनको P&L मतलब book balance करना था. And the company that is acquired is a very big company and has multiple brands. So they had to fire a lot of people. They had to shift a few people to other companies. So in the end, like on the floor, everyone was upset कि भाई मेरे साथ भी ये हो जाएगा, ये सब क्यों किया? And they fired a lot of senior people, like reputed people जो काफ़ी टाइम से organization में थे. But in the end, the work is going. And I was of the opinion कि bro, I would have done the same thing honestly. मेरी कंपनी होती I would have done the same thing because मेरे को पता है इतने पैसे जा रहे हैं मेरे को ROI उतना नहीं मिल रहा है. Correct. और bro ठीक है, people are going to be upset. The people who have been fired and the people who are going to work over here are going to be upset. They are going to be scared कि भाई मेरे साथ भी कल हो सकता है. But I would have done the same thing, bro. Anyone would have. मतलब I think if you like wouldn't have, then you are too emotionally involved. Yeah. You need to have some emotions, but at the end, I like this line from Triple H actually. That's what's best for business. Business. Yeah. Like whatever is good for business. Yeah. एंड लाइक किसी को मजा तो नहीं आता ना फायर करने में, वो तो नीड ऑफ द आवर है तो ही कर रहा है आदमी जो भी है. बट मेरे को लाइक ऐसा लगता है आफ्टर ऑल दिस हसल राइट एंड सो मच दैट वी आर आल्सो डूइंग फ्रॉम start of the day to end of the day, what is your best way to end your day with in order to relax some like some soothing stuff? I think for me ऐसे रात को मैं last thing that I do is मतलब जिम आने के बाद मैं जो चीज़ करता हूँ सोने से पहले कि मैं बस आधा घंटा टीवी चालू करता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ और असाइनमेंट का वीडियो देख लेता हूँ. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट्स एन एस्पिरेशन फॉर मी, राइट? इट जस्ट मेक्स मी फील हैप्पी कि ब्रो दीज पीपल आर हैविंग फन फकिंग अराउंड मेकिंग वीडियोज फॉर अ लिविंग एंड इट जस्ट मैं अपना बोलते हैं ना रियलिटी भूल जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ. करेक्ट. एंड आई फील अ पार्ट ऑफ दैट क्रू, आई फील अ पार्ट ऑफ दोज मेंबर्स एंड आई सी दैट एंड आई एम लाइक ब्रो लाइक इन द एंड this is what matters कि ठीक है I had a long day, I had my problems, I did this, I did that, but in the end this is the goal. Tomorrow when I wake up, this is what I aspire to be. So I start my day again thinking कि चल ठीक है मेरे को अगर वो पहुंचना है मेरे को इसको करना ही पड़ेगा. Correct. So that is my down time. बोलते हैं ना कि हाँ आधा घंटा बैठ के बस एक्साइटमेंट का वीडियो चला लो. It just makes me feel happy. Yeah, and I think that's a very lovely thing to do as well because you're doing it at the end of the day. Yeah. Just before you're about to sleep. Yeah. So it's like you're consuming what you aspire to be. Correct. And it's not some nonsense shit where you're just like doom scrolling and ये वो etc. जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं काफी लोग करते हैं. हाँ नॉनसेंस भी करता हूँ, बिग बॉस देख लेता हूँ कभी कभी. हाँ मतलब ये ठीक है, like every man has his vices. What about you, bro? No, for me I think something that I've stopped since some time because I'm too tired right now. But I love to take some hot baths at night. मतलब I think मेरे को उससे नींद बहुत बढ़िया आती है. मतलब I can't even tell you, it is so good to sleep. मतलब मेरे को अगर if I am facing insomnia also ना तो भी नींद आ जाएगी मेरे को. मतलब कि because it just relaxes you in some way. You feel good, ठीक है, you feel fresh. And it मतलब I don't know, the vibe is just nice. Yeah. Like because you smell nice. Yeah. And you come out of the shower and then जो भी थोड़ा बहुत basic skin care करते हो वो करते हो. You feel clean. Yeah, you feel clean and hygienic, and it is a very basic thing to say. Yeah. But like I told you, मैं अभी नहीं कर रहा बहुत time से because I come back home. Sometimes I come back by 10:30. I come, I just wash my face, फिर I just wash my hands, eat dinner, and I'm too tired. मेरे लिए क्या है कि मैंने मेरा मुंह धो दिया, हाथ धो लिया, ठीक है, खाना खाया, चेंज किया, वो मेरा बस फिर 1-2 क्रीम लगाया, सो गया. अभी लगता है फिर थोड़ा आलस आ जाता है कौन जाएगा. बट हाँ आई थिंक बीच में मेरा ऐसा फेज था जब मैं 2-3 साल कंटिन्यूस लाइक एवरी डे मैं आई हैव टेकन अ बाथ एट नाइट. बट ऐसे मतलब ये बोलते हैं ना रूटीन, मतलब इतना रिलैक्स नहीं लगता आजकल. तो जेन्युइनली देखो आई थिंक हमने बात की है कि ऐसा लगता है कि ब्रो टाइम भाग रहा है. करेक्ट. लाइक ऐसे ब्रो फॉर मी आई जेन्युइनली फील लाइक आई एम लिविंग इन अ लूप.
करेक्ट, मेरे को रोज लगता है मैं लूप पे जी रहा हूँ ब्रो, क्योंकि सेम चीज मैं रोज किए जा रहा हूँ और टाइम इतना जल्दी जाता है ना. और लोग अभी मेरे को जो भी बोलते हैं ना ब्रो, टाइम इज गोइंग सो स्लो, एंड आई एम लाइक ब्रो कौन बोलता है भाई ये सब, कौन बोलता है, बिल्कुल नहीं. तो मेरे को तब ऐसे, मेरे को कुछ लोग जब बोलते हैं टाइम इज गोइंग सो स्लो, तब मेरे को रियलाइज होता है कि ब्रो द फीलिंग ऑफ बीइंग लॉक्ड इन इज इनसेन. करेक्ट, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ रात को सोने से पहले कि चल ब्रो मैंने, मेरे को जो बोला था मैंने कर लिया है, मुझे पता है कि नेक्स्ट डे भी मैं सेम करने वाला हूँ. The feeling of being locked in is just so fucking amazing, and it just makes you feel so grateful, because you know there are people who are not doing the things that they want to do, and because for them it's like time is going so slow. I have been in that phase कि हाँ bro time इतना slow जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा, बोर हो रहा है मेरे को. बट आजकल तो मेरे को फील ही नहीं होता ब्रो, फील ही नहीं होता. मेरे को पता है कि ब्रो ऐसे जाएगा टाइम, ऐसे. करेक्ट. हाँ मतलब लाइक आई थिंक द ब्यूटी ऑफ बीइंग लॉक्ड इन इज दैट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बिजीनेस. करेक्ट. Right, and from morning to night you are just occupied, and you are doing something productive all the time. Yeah, like you know, even if like you know, you are just walking on the road, sometimes if you have something, like have some goal in mind, you might be, you know, reading something on your phone. मतलब एंड वो तुम्हारा 10 मिनट का वॉक कब 2 मिनट में लाइक यू नो खत्म हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा. सो इट माइट सीम लाइक अ 10 minute वॉक, बट इट वाज अ 10 minute वॉक, बट इट फेल्ट लाइक अ 2 minute वॉक. And like you know, this is a very small example of how your 24 hours are being spent. जो मतलब 24 घंटा literally goes like 4 घंटा max, मतलब if I have to say that way. And in our case, like I've told कि since we are doing 2-3 things together, like you are doing 4 things, I am doing 2 things, उसमें से भी मेरा एक is too hectic, like मैं हाँ मतलब मेरा office तो like काफी ज़्यादा, and I'm on toes all the time. In my previous office I wasn't on toes. It was like कि normal दिन चल रहा है, काम आ रहा है कर रहे हैं, but यहाँ पर जब आता है तब अच्छा खासा आता है, right? And startups में होता है वैसा. तो for me कब शाम के 7:30 लाइक 8 बज जाते मेरे को पता नहीं चलता. फिर आए नो कि चलो 8 बज गए या 8:30 बज गए, मैं अब निकल रहा हूँ. मैं 8:30 निकला हूँ, मैं 9:45 10 o'clock घर पे पहुँचूंगा. फिर रात को घर पहुँच के 10 से लाइक 11:30 कब हो जाते हैं मेरे को पता नहीं चलता है ना, बिकॉज लाइक अगेन यू आर कमिंग, यू आर जस्ट बिजी इन लाइक इन अ रूटीन. एग्जैक्टली, तू आ रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा हूँ, खा रहा है, उसमें आया 1-आधा घंटा निकल ही जाता है, और वो फिर तेरे को लगता भी नहीं कि तूने रिलैक्स किया, क्योंकि वो भी तेरा रूटीन ही है. तू खाना खाने के बाद शांति से आधा घंटा बैठ जाएगा सोने से पहले कि चल भाई एवरीथिंग इज डन. उस पर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा कि भाई पॉडकास्ट का ये देखना है, वो देखना है, ये करना है भाई. बट genuinely this feeling is very rare to have, and I think it's like blessing, blessed to have this feeling bro, honestly. Malab, and at this stage it definitely it is a like you know blessing only. And all a man can pray at this stage is that you know something works out for the good. Right, you know something good comes out of it, because you are doing all this, or like any man doing all this is for a particular purpose, like a goal to achieve. And once you achieve that flow state, then it just feels like play to you कि चलो ठीक है, ये तो मेरा normal routine है, I'm enjoying it, and time is also running, and I'm doing something good, so like you know you're happy also. It's just that to have some patience and to see some tangible results at the end of the day, because not seeing some results after X number of years, and some things may take a lot of time. Right, example, if you want to build like proper you know biscuit six pack, it will take at least 2 to 3 years of clean eating, of regular workouts, of drinking a lot of water, so many things together, on like you know of sleeping on time, of doing this, not, and you have to do it for 2-3 years at a stretch together without any breaks. Right. उसके बाद ही after like 1 year can be a big time, but after 1 year you can't be like अरे कुछ खास दिख नहीं रहा है, नहीं दिखेगा, और 2 साल करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा. हाँ मतलब to achieve greatness you do it for X number of years consistently throughout, and that's why people like Kohli, Ronaldo, they are where they are. That is the reason why they always say sacrifice bro, like people don't understand that कि भाई तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा टू बी समवेयर और डू समथिंग. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल लाइक क्यों करूँ मैं सैक्रिफाइस, चल ना ब्रो फ्राइडे दारू पीने चले जाते, क्या ही फर्क पड़ेगा. बट नहीं ब्रो, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड यू विल लूज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू विल लूज अ लॉट ऑफ people in your life because they don't agree with you, and they are not wrong, they are living a particular lifestyle, but in the end you need to accept that ki theek hai bhai, this is not for me right now. I aspire to live this lifestyle, but not right now. I will live it when I achieve the goals that I have achieved. So it's like it's very,
I don't know, bro. उस दिन also like I was talking about the same thing with my girlfriend. I just fucking cried my eyes out. क्योंकि I was like everything was very overwhelming. कि bro ऐसा मेरे को कभी कभी होता है ना डेस्क कि bro nothing is working out. Like I'm doing everything in my life but nothing is working out. So I just picked up the phone and I called my girlfriend. I'm like, bro, I hope this motherfucking thing works out. Everything works out because I'm sacrificing a lot of things. I'm doing a lot in my life and if this doesn't work out, I'm just going to kill myself, bro. ऐसे भैंसो इससे ज़्यादा और क्या ही करूँ भाई मैं. Yeah. So वो होता है कभी कभी but that day के लिए also I'm grateful for next day I was like ठीक है चला I'll let my emotions out and I'm still going to do the same thing today also. Correct. And that also makes me think ki like example, you know, after a year of hustle, when we don't see results, and then we get upset, and I ask myself this question: is this the way you're going to achieve greatness? Like did all the great people, they just did one good year of hard work, and they reached where they are. मतलब अगर खाली 1 साल लगता, खाली 2 साल लगता या 3 साल भी लगता तो बहुत लोग और कर लिए होते. करेक्ट. राइट. यू नो, यू वुड सी वे मोर पीपल एट द टॉप. राइट. बट एग्जाम्पल, in order to achieve that level of stature or fame or wealth or that kind of financial freedom and mental peace, you need to just log your ass off in a very smart way, in a very hardworking way, and with a lot of faith and good karma. Correct. Over and over and over for half a decade or almost a decade or more than a decade. वो है ना KFC वाले का example. He achieved his goal that, you know, KFC का जो भी success हुआ, he got that when he was 60-65, something of that age, like, you know, age bracket. Yeah. So even he tasted success. Yeah. But in his destiny, it was written at that age. Yeah. At least I know that the man died happily. Happily. Yeah. Like I don't know till what age he was alive, but let's say 75. I know कि last के 10 साल he must have seen, you know, whatever he dreamt of since he was a child. Yeah. So ठीक है, टाइम लगता है. इट इज जस्ट दैट वो जो बोलते हैं ना, समय के पहले तो नहीं मिलेगा. तो देखते अभी जो क्वांटम मिलेगा हमको तो नहीं मालूम, बट वही बस देखते अभी कितना. इट्स ऑल अबाउट द patience game and the process game. On that note, thank you guys for watching. Hope you guys like this episode and subscribe to our channel. We'll be back next week. Bye. Peace.